Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our economic series that is a wonderful initiative of Udan IAS. Acha. To give you a quick recap of whatever we had discussed in the last of the class was that we have a discussion on ATMs. Rather, if I'm saying we had a discussion on several types of the ATMs that could be out there. We had a discussion on worksite ATM, we had a discussion on site off-site ATM, and after that we went into bit of the detail in which we had talked about your white labeled ATMs and brown labeled ATMs, है ना. White labeled ATMs में मैंने आपको क्या बताया था, that is these are the ATMs that are owned as well as managed by whom, by certain non-banking entities, है ना. ठीक. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर ब्राउन लेबल्ड ATMs, एंड इन दोज ऑफ द ब्राउन लेबल्ड ATMs आई टोल्ड यू दैट these are what these are the ATMs that are maintained by certain non-banking entities, but the cash management system that will be taking in that of the ATM will be done by what, that is sponsor bank. मतलब मशीन मेरी पैसा मैनेज आप करेंगे, है ना. सो दोज काइंड ऑफ ATMs वर कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज ब्राउन लेबल्ड ATM. ठीक. अच्छा, to be going in the same of the sequence, what I will be doing today is that we will be doing certain kind of key terms on which UPSC has asked certain kind of questions in past few of the years, and since they have asked the question, so you should be having a general kind of idea of what this entire of the setup is all about, of what all these key terms that are all about, है ना. ठीक. अच्छा, तो एक बार स्टार्ट करते हैं आज. अच्छा, नंबर फर्स्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वी विल बी डूइंग टुडे इज रिगार्डिंग मर्चेंट डिस्काउंट रेट. ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक. Regarding merchant discount rate, I had already given you a certain kind of question on MDR, that is merchant discount rate. But as such, I had not explained you the meaning in an explained manner, in a detailed manner. ठीक. So what I will be doing today is that we will be having a discussion on merchant discount rate. ठीक. और भी बाकी चीज़ों पे डिस्कशन होगी, दैट इज स्विफ्ट कोड है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ्स दैट आर आउट देयर, है ना. सो अगर मैं बात करता हूं रिगार्डिंग मर्चेंट डिस्काउंट रेट, आई शुड बी सेइंग दैट इज, फॉर एग्जांपल, दिस इज बैंक. ठीक. ये क्या है आपका, दैट इज मर्चेंट, एंड दिस इज योर कस्टमर. नाउ आई एम सेइंग दैट कि कस्टमर ने मर्चेंट को क्या दिया, पेमेंट दिया. ही हैज गिवन हिम द पेमेंट. ठीक. कि भैया ये लो आपका पेमेंट, जो मैंने आपसे गुड्स खरीदा उसका ये लो पेमेंट. ठीक. नाउ सी, if the customer is paying this entire of the payment through digital medium, so I will be saying that through this digital medium, the bank is saying that ki the merchant has been able to get this payment through digital medium, that is I will be saying that is in a kind of very easy, very efficient manner. So I should also be getting a due share in this entire of the payment as my commission. ठीक. क्योंकि कस्टमर ने मर्चेंट को पैसा दिया थ्रू डिजिटल मीडियम, देयर ट्रांजैक्शन हैव बिकेम इजी, एंड सिंस आई हैव बीन द facilitator, so I should be getting due share of the commission of whatever the transaction has taken place. But this entire of the commission I will not be taking from the customer, and rather I should be taking it from whom, that is bank. Take. So I should be saying that is in respect of this entire of the transaction that had taken place over here. Take. What the bank is demanding, that is what I will be doing, I will be taking certain kind of commission from this merchant. ठीक है, मैं क्या लूंगा, एक कमीशन लूंगा, and this entire of the commission has been called as what, that is merchant discount rate, had been called as what, that is merchant discount rate. ठीक. सो अगर मैं बात करता हूं इसमें, दैट इज व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट. मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज अ फी पेड बाय द मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया डिजिटल मीन्स. नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिजिटल मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखना है डिजिटल मीन्स के थ्रू पेमेंट आपकी होनी चाहिए. ठीक. अच्छा. सो दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से दैट इट इज अ फी चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो आपके यही तो सारे आपके क्या है, ठीक, आपके डिजिटल मीन्स एंड दैट इज योर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, है ना. तो ये क्या बोलता है कि भैया आपको
इन कार्ड्स के थ्रू अगर आपका पेमेंट होगा, सो यू शुड बी क्या गिविंग मी ड्यू शेयर, एंड दैट शेयर विल बी कॉल्ड एज डिजिटल क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट. ठीक. सो नेक्स्ट पॉइंट इट इज सेइंग दैट इज एमडीआर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट. ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट. वही जो मैंने आपको बताया कि कमीशन होगा, है ना, कि सर्टेन परसेंटेज होगा आपका कितना ट्रांजैक्शन अमाउंट का. ठीक. तो इसमें मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर अमाउंट जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, एज योर अमाउंट विल बी इंक्रीजिंग, आई विल बी सेइंग दैट इज योर मर्चेंट डिस्काउंट रेट विल आल्सो बी इंक्रीजिंग. So the amount of the transaction that will be taking place will be directly proportional to the merchant discount rate. Amount बढ़ेगा, MDR बढ़ेगा, amount घटेगा, MDR घटेगा, है ना. That thing you have to understand. ठीक. Next important point is that decide कौन करता है merchant discount rate? It is क्या fixed by RBI, fixed and revised time to time by RBI. So Reserve Bank of India is majorly deciding this entire of the thing. That thing you have to also क्या understand. अगला मैंने क्या बताया, आई एम सेइंग कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसमें आपका क्या है, ठीक, कि आपका नहीं लगता, क्या आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता, एंड दोज आर द ट्रांजैक्शन आई एम सेइंग इज व्हाट, दैट इज रूपे. ठीक है. इफ यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन थ्रू रूपे एज वेल एज भीम यूपीआई, जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक, तो उसमें आपका एमडीआर नहीं लगता. ठीक. सो एक बार फिर से क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट पूरा देख लेते हैं. क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? फी दैट इज क्या पेड बाय द merchant to bank for ensuring, or I should be saying that is for thanking a bank, or क्या giving him a kind of commission, that is through your debit cards and credit cards I have been able to make my payments. Take number second of the thing, that is as your MDR will be increasing, your amount will be increasing, your MDR will also be increasing. That is amount will be directly proportional to the MDR. Take this MDR is decided by what, by whom? That is RBI. And next of the thing is that UPI पे आपका MDR नहीं लगता, that is merchant discount rate is not applicable on UPI as well as RuPay. ठीक. अच्छा, अगला एक बार देखते हैं स्विफ्ट कोड. स्विफ्ट कोड के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है. देखो ठीक, पहले तो स्विफ्ट की का फुल फॉर्म ही देख लेना. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट कोड? सो आई विल बी सेइंग दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है. सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक. अच्छा, ये स्विफ्ट कोड है क्या यार? ठीक. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ क्या आई शुड बी सेइंग दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स अगर मेरे होते हैं. ठीक है. कई बार क्या होता है कि व्हेन आई एम क्या ट्रांसफरिंग माई मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एंड दैट टू आई शुड बी सेइंग, ठीक है, एक बैंक से मैं कहाँ जा रहा हूँ? दूसरे बैंक पे, एंड मेजरली फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ठीक. मैंने क्या बोला? बैंक वन से, ठीक, बैंक वन टू बैंक टू, इफ आई एम सेइंग दैट इज माई ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. सो यूजुअली क्या होता है, इसमें कोड जनरेट होता है. ठीक है. यूजुअली वी आर क्या डूइंग दिस एंटायर होता है स्विफ्ट कोड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए. ठीक. तो इसमें क्या होता है, एक कोड जनरेट होता है, एंड दैट ऑफ द कोड आई एम सेइंग इज व्हाट, दैट इज योर स्विफ्ट कोड. ठीक. तो स्विफ्ट क्या है? दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक. बोल क्या रहा है भैया? स्विफ्ट कोड आपको समझ आ गया होगा. मैंने क्या बोला, एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में क्या कुछ ट्रांजैक्शन होता है, तो स्विफ्ट कोड को हम लोग यूज करते हैं. ठीक. सो इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुड आल्सो बी देयर. अप्रूव्ड बाय ISO, अप्रूव्ड बाय ISO, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट, दैट इज स्टैंडर्ड्स. ठीक है. ये ISO की बॉडी के अंदर, कौन सी बॉडी के अंदर आता है? दैट इज ISO की बॉडी के अंदर जो भी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. सो ISO अप्रूव्ड, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स. ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स के अंदर जितने भी मेरे फाइनेंशियल as well as non-financial institutions will be there, as well as non-financial institutions will be there. ठीक. both these of the क्या financial as well as non-financial institutions, ठीक है, will be involved in certain kind of transaction. ठीक. And these transactions are usually accompanied by generation of a code, and that of the thing are called as your Swift code. बहुत आसान है, समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना. ठीक. सो हैंडल्स ऑल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज ऑफ द कोड्स. ठीक है. ठीक. तो ये चीज याद रखना.
स्विफ्ट कोड्स आर यूज्ड व्हेन ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन बैंक्स, ठीक है, मनी बिटवीन बैंक्स, particularly for the international wire transfer. I told you that is whenever we are usually doing what, that is international transaction. At that time this entire of the thing is kya becoming more applicable, as well as for the exchange of the messages between the banks कि भैया अगर कोई किसी टाइप का कम्युनिकेशन करना है तो भी these swift codes will be used. ठीक, तो क्या बताया मैंने आपको स्विफ्ट कोड के ऊपर, दैट इज स्विफ्ट कोड इज मेजरली क्या, all those organization, all those institution, both financial institution as well as non-financial institutions that are part of, that are affiliated by ISO, that is International Organization for Standards. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर जितने भी मेरे फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा, ठीक, ऑफ बोथ मनी एज वेल एज इंफॉर्मेशन, तब एक कोड जनरेट होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, स्विफ्ट कोड. बस आपको इतना जानना जरूरी है. ठीक, एक लास्ट देख लेते हैं इस पे, ठीक है, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के ऊपर यूपीएससी 2016 में देयर हैड बीन अ क्वेश्चन एज वेल, ठीक है. सो देयर हैज बीन अ क्वेश्चन इन यूपीएससी 2016. क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना. इफ आई एम सेइंग रिगार्डिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है, सो अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये क्या है मेरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा क्या कोटक महिंद्रा में मेरा अकाउंट है, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट कहाँ पर है, दिल्ली की किसी ब्रांच में है, ठीक है. मान लो मैं बोलता हूँ क्या करकड़ूमा ब्रांच में मेरा क्या कोटक महिंद्रा में मेरा अकाउंट है. नाउ फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम सिटिंग इन मुंबई, ठीक है. मुंबई में अगर मुझे कोटक में कुछ काम करवाना है, सो आई शुड नॉट बी सेइंग दैट इज आई हैव टू गो टू माई ब्रांच, माई पेरेंट ब्रांच विच इज देयर इन दिल्ली, एंड मैं जो भी काम होगा अपने बैंक का, आई शुड बी एबल टू गेट इट डन फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, फ्रॉम इट्स ब्रांच इन मुंबई, ठीक है. सो दिस एंटायर ऑफ द नेटवर्किंग थ्रू विच सेवरल ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बैंक are interconnected. I am saying that this is being done by what, that is core banking solution. ठीक है. So core banking solution क्या बोलता है कि भैया for example there are multiple of the bank branches that are out there, and these bank branches are interconnected with each other. ठीक, ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है, दिस इज मेजरली पॉसिबल फॉर व्हाट, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो इसी नेटवर्किंग को मैं क्या बोलूंगा, इसी नेटवर्किंग को आई एम सेइंग दिस एंटायर ऑफ द नेटवर्क दैट इज आउट देयर बिटवीन डिफरेंट ऑफ द बैंक ब्रांचेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. ठीक है, अच्छा, तो इधर देखना थोड़ा सा, ठीक है. सो व्हाट इज दिस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज सेइंग, अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. तो कोर का फुल फॉर्म इन्होंने क्या बताया है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, नंबर फर्स्ट टू द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक, दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, आई एम सेइंग दैट सीबीएस इज अ नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस विच इनेबल्स अकाउंट होल्डर्स, विच इनेबल्स क्या, ठीक है. सो सीबीएस क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है, जो मैंने बताया है, दिस इज योर नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क है डिफरेंट ब्रांचेस का, विच इनेबल्स अकाउंट होल्डर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स. वो क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अवेल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन सीबीएस नेटवर्क. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दिस अकाउंट इज मेंटेन. ठीक है, सो आप यू कैन ऑपरेट योर बैंक अकाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ दैट बैंक लोकेटेड एनीवेयर. ठीक है, सो दैट नेटवर्किंग इज मेनली इंश्योर्ड बाय व्हाट, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. ठीक, अच्छा, सो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, दैट कस्टमर इज नो मोर द कस्टमर ऑफ द बैंक ब्रांच, ही बिकम्स अ ओवरऑल बैंक कस्टमर. ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का कस्टमर नहीं है, ही इज अ क्या, कस्टमर ऑफ ऑल दोज ब्रांचेस दैट आर आउट देयर. तो बैंक एज सच का कस्टमर बन गया, पर्टिकुलर ब्रांच का कस्टमर नहीं. ठीक है, ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास. ठीक, एक यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी 2016 में आया हुआ है, क्या आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से. सो व्हाट दिस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज सेइंग, क्वेश्चन क्या बोलता है, सवाल क्या बोलता है, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस टर्म. ठीक है, तो क्या है, इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस which enable customer to operate their accounts from any branch of the bank
on its network regardless of where they are open. That is a very correct statement. Just now right now I told you, ठीक है, कि किसी भी ब्रांच से आप बैठ के आप किसी भी ब्रांच में क्या मतलब किसी भी ब्रांच में आप क्या जाके अपना काम करवा सकते हैं इफ यू आर क्या मेंबर ऑफ वन ऑफ द ब्रांच. ठीक. नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआईज कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन. इट इज नॉट द केस. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इट इज जस्ट नॉट द केस. ऐसा कोई इसका एम नहीं है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का. ठीक है, सो आई शुड बी सेइंग कि ये स्टेटमेंट है हो गई इनकरेक्ट. ठीक है, कंट्रोल ओवर बैंक्स नहीं करना. दिस इज ओनली फॉर द ईजनेस ऑफ द कस्टमर्स. ठीक. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच बैंक with huge NPA is taken over by another bank. No, this is also utter nonsense. कुछ नहीं है ऐसा. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, दैट इज वन ओनली एंड दैट इज योर आंसर हैज टू बी ए. यूपीएससी 2016 का बड़ा ही टच्चा सा क्वेश्चन था. बस हाँ, ये पता होना चाहिए कि भैया कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है क्या, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी टुच्चा, वेरी इजी. आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही. और हाँ, जैसे मैं जाते जाते आपसे एक छोटा सा विनती करता हूँ, अपील करता हूँ क्या, कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उड़ान आईएएस का चैनल एंड स्प्रेड द गुड वर्ड दैट वी आर डूइंग, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू कीप अस मोटिवेटेड, enthusiastic and bring a better content for you people. ठीक. And yes, if you want to connect with me on Telegram, obviously you can do that. Sammy2908. ठीक. This is my what? This is my Telegram group, and lot of my students are actually part of it. And if you also want to be the part of this beautiful, enthusiastic journey, obviously you can join this group as well. ठीक. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. प्रेस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास. और जैसे मैं हमेशा क्लास को एंड करता हूँ, कैसे? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. प्लश 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 प्लश. वाई? बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ. चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.